न्यू ब्रॉडवे इंग्लिश कोर्स बुक 7 स्टैंडर्ड का सेकंड नंबर का लेसन द ट्री लवर आज देखने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। Grandfather had served many years in the Indian Forest Service, and so it was natural that he should know and understand and like trees. On his retirement from the service, he had built a bungalow on the outskirts of Dehra, planting trees all around it. Limes, mangoes, oranges and guavas, also eucalyptus, jacaranda and the Persian lilac. In the fertile Doon Valley, plants and trees grew tall and strong. There were other trees in the compound before the house was built, including an old peepal tree which had forced its way through the walls of an abandoned outhouse, knocking the bricks down with its vigorous growth. Peepal trees are great show-offs. Even when there is no breeze, their broad-chested, slim-waisted leaves will spin like tops, determined to attract your attention and invite you into the shade. My favorite tree was the banyan tree, which grew behind the house. Its spreading branches, which hung to the ground and took root again, formed a number of twisting passageways. The tree was older than the house, older than my grandparents. I could hide in its branches, behind a screen of thick green leaves, and spy on the world below. The banyan tree was a world in itself, populated with small animals and large insects. While the leaves were still pink and tender, they would be visited by the delicate map butterfly, who left her eggs in their care. The honey on the leaves, a sweet sticky smear, also attracted the little striped squirrels, who soon grew used to having me in the tree and became quite bold, accepting gram from my hand. Grandfather wasn't content with planting trees in our garden. During the rains, we would walk into the jungle beyond the riverbed, armed with cuttings and saplings, and these we would plant in the forest, besides the tall sal and shisham trees. But no one ever comes here, I protested the first time we did this. Who is going to see them? We are not planting for people only, said Grandfather. We are planting for the forest, and for the birds and animals who live here and need more food and shelter. He told me how men, and not only birds and animals, needed trees, for keeping the desert away, for attracting rain, for preventing the banks of rivers from washing away, and for wild plants and grass to grow beneath. And for timber? I asked, pointing to the sal and shisham trees. Yes, and for timber. But men are cutting down trees without replacing them. For every tree that's felled, we must plant 2. Otherwise, one day there will be no forests at all, and the world will become one great desert. The thought of a world without trees became a nightmare for me. It's one reason why I shall never want to live on the treeless earth, and I helped Grandfather in his tree planting with even greater enthusiasm. But recently, I was in Dehra again, and after first visiting the old house, where I found that the banyan tree had grown over the wall and along part of the pavement, almost as though it had tried to follow Grandfather, I walked to the riverbed. It was February, and as I looked across the dry water course, my eye was caught by the spectacular red plumes of the coral blossom. In contrast to the dry riverbed, the island was a small green paradise. When I walked across to the trees, I noticed that a number of squirrels had come to live in them. But the trees seemed to know me. They whispered among themselves and beckoned me nearer, and looking around, I noticed that other small trees and wild plants and grasses had sprung up under the protection of the trees we had placed. The trees had multiplied. Grandfather's dream was coming true. ये दोस्तों आज हिंदी अनुवाद देख लेते हैं द ट्री लवर का। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में बहुत दिनों तक काम किया था, इसीलिए उन्हें पेड़ों के बारे में सब पता था और वो सब समझ रहे थे। उन्हें पेड़ बहुत पसंद करते थे, वो भी पेड़ों को बहुत पसंद करते थे। उनकी रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने एक घर बनाया हुआ था जो देहरा के बिल्कुल आउटसाइड था,
और उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को वहाँ पे लगाए थे, जैसे मैंगो हो गए, ऑरेंजेस हो गए, गवास हो गए। तो ऐसे अलग अलग जो प्रजाति के अलग अलग बड़े छोटे सारे फूलों वाले, बिना फूलों वाले, बहुत बड़े वाले, ऐसे सारे के सारे पेड़ उन्होंने अपने यहाँ इस गार्डन में लगाए हुए थे। और जहाँ जहाँ पे उन्हें ऐसी बिना पेड़ों वाली ज़मीन मिलती थी, वहाँ पे जाके वो पेड़ लगा देते थे। ये है हमारा आउटसाइड जो हाउस होता है वो। अब यहाँ पे जो पीपल का बड़ा सा ट्री था, वो एक्चुअली वहाँ पे वो ट्री को एक बाजू में, मतलब उसके बिल्कुल सामने ही वो घर बनाया गया था हमारा, जो हमने गेस्ट लोगों के लिए बनाया था। और ये पीपल का जो पेड़ है, ये एक शो ऑफ कर रहा था कि इससे भी मैं बड़ा हूँ। इसकी जो बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस हुआ करती थी, ये इसे इनवाइट कर रही थी, ऐसे लग रहा था। और ये सबसे लोगों के लिए अट्रैक्शन बन चुका था और लोगों को ये मजबूर करता था कि इसके शेड में आके बैठे। लेकिन मेरे लिए तो जो बनियान का ट्री हुआ करता था, वो मेरा सबसे पसंदीदा ट्री हुआ करता था, क्योंकि ये मेरे घर के बिल्कुल साइड में ही था, पीछे ही था। और ये इसकी पेड़ों की जो ब्रांचेस हुआ करती थी, यहाँ पे जो बटरफ्लाइज होते थे, अलग अलग जो कीटाणु होते थे, ये सब मुझे पसंद थे। ये जो ट्री है, ये इतना पुराना है, जितने पुराने तो मेरे ग्रैंडफादर भी नहीं है इतने। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे घने पेड़ के जो ब्रांचेस है, उसके ऊपर बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे कीटाणु जो है, ये इनका घर यहाँ पे बनाते थे। जब तक कि पेड़ के जो पत्ते हैं ग्रीन और बाद में पिंक कलर के, बाद में वो सूख के गिर जाते थे, तब तक ये पेड़ बहुत सुंदर दिखता था। उसके बाद भी ये बहुत सुंदर लगने लगता था। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे बटरफ्लाइज अपने जो अंडे हैं, ये इस पेड़ के, इस पौधों के, इस लीव्स के ऊपर रख के चले जाते थे बिना डरे हुए। यहाँ पे स्क्वायरल को देख सकते हैं। और मैं जो हूँ, मेरे लिए तो ये ब्रांचेज जो है, ये बहुत अच्छी, मैं यहाँ पे बैठ जाता था। मेरे जो फ्रेंड्स हैं स्क्वायरल, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए लाता था। ग्रैंडफादर जो है, ये पेड़ के छोटे छोटे प्लांटेशन के लिए पौधे उगाते थे। और वो हम जब रेन आती थी उस मौसम में, हम इस सैपलिंग्स को लेके हम फॉरेस्ट के आजू बाजू का जो एरिया होता था, वहाँ पे ये लगाया करते थे। खासकर मैं और मेरे दादाजी साल और शीशम के वृक्ष लगाया करते थे। और मैं हमेशा उनसे पूछा करता था, जब मैंने पहली बार देखा, कौन इन्हें देखेगा, कौन इनकी निगरानी करेगा। तो ग्रैंडफादर ने बोला था, हम पीपल, मतलब लोगों के लिए पेड़ नहीं लगा रहे हैं, हम पेड़ इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ का जंगल ख़त्म ना हो जाए। यहाँ के जो बर्ड्स है, यहाँ के जो एनिमल्स है, उनको रहने के लिए, उनको खाना पीना सब होने के लिए पेड़ पौधे होने चाहिए बेटा। बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए तो हमें पेड़ लगाना ही है। लेकिन ये जो हमारा जो हरा भरा जो एरिया है, ये कभी किसी दिन डेजर्ट ना बन जाए, इसलिए भी मैं लगाता हूँ। और जो ग्रैंडफादर थे, मैं और वो हमेशा जो रिवर्स की जो आजू बाजू का जो बैंक्स एरिया रहता था, वहाँ पे जाके पेड़ लगाया करते थे, उनकी देखरेख करते थे। तो मैंने बोला कि दादाजी, हम अक्सर साल और शीशम को तोड़ के उसको भी तो यूज़ करते हैं। तो दादाजी ने बोला, हाँ बेटा, बराबर है, हम पेड़ों को तोड़ते हैं, उनका घर बनाने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमने एक पेड़ अगर काटा है तो उसकी जगह पे हमने 2 पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि हम हमारे जो बचे कुचे जो फॉरेस्ट है वो बचा सके। नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पूरा जंगल पूरा जंगल खो जाएगा और हमारा ये पूरा जग एक डेजर्ट बन जाएगा। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा बुरा सपना बन के रह जाता था। पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी धरती बंजर बन जाए, बिना ट्री के रह सकती है। ऐसा सोच के फिर मैं भी अपने ग्रैंडफादर के साथ उनको हेल्प करता था ट्री प्लांटेशन के लिए। बाद में जब मैं बड़ा हो गया, देहरा, बाद में जब मैं गया, मेरी पहली विज़िट जो थी मेरे हाउस में, अब मैंने देखा कि जो बनियान ट्री था, ये तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा हो गया था। उसकी जो पेवमेंट्स है, उसका जो ये था ब्रांचेस थी, वो तो बहुत बड़ी हो गई थी। और मुझे
तब ग्रैंडफादर की याद आई, जो उन्होंने आजू बाजू में रिवर के आजू साइड में जो पेड़ लगाए थे वो भी आज बड़े बहुत घने बड़े बड़े हो गए थे। मैं अपनी आंखों से इन सबको देख रहा था। हालांकि वो महीना फरवरी मंथ था, रिवर में ज़्यादा पानी तो नहीं था, लेकिन वो जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे वो छोटे छोटे पेड़ पौधों को अपनी छाया दे रहे थे। एक जैसे कि मुझे ऐसे लग रहा था कि एक हरा भरा स्वर्ग यहाँ पे बन चुका है। और मेरे ग्रैंडफादर का जो सपना था कि जंगल डूबने नहीं चाहिए, खोने नहीं चाहिए, वो कहाँ पे मुझे ऐसे नज़र आने लगा था कि नहीं, यहाँ का तो जंगल कभी खोएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ पे लगे हुए मैंने पाए। बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स से ग्रासेस थी जो हवा में उड़ रही थी, अपने प्रोटेक्शन वो खुद कर रही थी और छोटे छोटे ट्रीज़ का भी कर रही थी। यहाँ पे बहुत प्रजाति के अलग अलग ट्रीज़ जो है वो ग्रैंडफादर ने लगाए थे और उनका सपना इस तरीके से पूरा हो चुका था। तो मैंने ये आप लोगों को लेसन समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ देखिए, पूरा देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे देखते रहिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।